सभी को राम राम जय श्री महाकाल. This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Shikha Meher on the platform of Ankakshar Miracles as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of both our anthology books, which are available globally on all the platforms, Amazon, Flipkart, and they are titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. And hello, Shikha ji, how are you doing today? Very good, ma'am. How are you? Yes, I am good too. So let's take the blessings of the God and enjoy this beautiful evening with you. बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे. चलिए, blessings लेते हैं. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. Before we move on, we'll talk more about ma'am. And ma'am, just let me know that whether you're able to see the screen. Yes. So, talking about Shikha ma'am, she's a tarot card reader, numerologist, candle healer, crystal healer, law of attraction coach, and this is the beautiful cover of My Marriage Bliss versus Curse, an anthology of 108 co authors. This is 7 Lee of Life. Lee is learning, earning, and expectation. This book has more than 2000 points, and I'm happy to share with you all that these both books have reached to the University of Mumbai, University of Pune, National Book Trust India. So सारे एक 108 co-authors, you all have reached to the major institutions. So big round of applause for all of you. And this is a small quote that I've taken out from the article of Ma'am, My Marriage Bliss versus Curse. It says, "Do not destroy someone's life and do not create bad karmas for yourself. Remember, your karma comes back with tenfold." And it's truly true. And this is her book. And this is a picture with the books. She has been holding these beautiful books, and आप देख ही सकते हैं कितनी happy है. She is being recognized as an internationally certified published co-author. And Thank now you let's so much, share. ma'am. I'm sorry, ma'am. I said thank you so much. Yes, it's our pleasure really having you on board with us on the platform of Ankakshar Miracles. And this is the book Mobile Addiction 21 Simple Techniques to Remove or Reduce Mobile Addiction in Children or Students and Adults. This is also available on Amazon, Flipkart. Actually, this book is really in need of the hour because all have been really into the mobiles. इतना मतलब scrolling इतना ज़्यादा हो गया है ना. This is authored by me and my husband Abhishek Chitransh, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles, an expert master numerologist. So you can also learn numerology from us. We also provide you the support in that. And graphology, vehicle numerology, mobile numerology, and much more. एंड नाउ वी आर ऑल्सो इन टू दी एंथोलॉजी सीरीज. और आप लोग के साथ शेयर करूंगी सीरीज में. पहले हमने स्टार्ट किया था वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. It was an anthology with 51 co-authors, and now we did this, My Marriage and Seven Lee of Life. Current anthology that is going on, that is a family puzzle, Roots to Wings for passing bonds across generations. So in this हम लोगों ने सोचा है, इसमें भी हमारा माइलस्टोन जो है वो 108 को ऑथर्स हैं. अब नियर अबाउट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 30 to 35. So what you all will get in this: hard copy of the book, hard copy of publishing certificate, your exclusive artwork, your elite portfolio, then author's introduction with color photo in the book, your identity card with lifetime membership, podcast, online interview, online or offline promotion of co-authors and book. You will get the trophy and medal of co-authorship. ये सारी चीजें जो है ना, that मतलब it all belongs to you. So this is going to be a superb, amazing feeling. And also this hard copy of the book Mobile Addiction, signatured by authors, that is totally free. Also we have
our magazine with the name Ankakshar Miracles, which is available on Maxter. So you will get a chance to get featured in it, surprise goodies and much more. और ये आप देख सकते हैं हमारे ब्यूटीफुल से co-authors हैं इसमें. They are really happy holding their copies in the hand. So this is totally an incredible feeling. एंड यही नहीं है कि आपको कोई इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए. सी ऑथर्स फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम नॉर्वे, फ्रॉम दुबई, कनाडा, बैंगलोर, एंड ऐसा है कि आज हमारे पास हर एक कंट्री से बोल सकती हूँ ना कि वी हैव कवर्ड बहुत सारी स्टेट्स, कंट्रीज. मतलब अभी तो मैंने कुछ ही आपके साथ शेयर किए हैं. सो वी आर लाइक टोटली इनटू द ग्लोबली सारे ऑथर्स को कवर कर रहे हैं. क्योंकि क्या हो रहा है कि हमें पता लग रहा है कि बाकी कंट्रीज में भी क्या चल रहा है, उनकी क्या सोच है, और टॉपिक्स भी ऐसे हैं. आप सोच सकते हैं माय मैरिजेस पे कौन बात कर रहा है आजकल. सो आपको बताना चाहूंगी को ऑथर्स ने खुद कहा है बुक्स को रीड करने के बाद कि दिस इज एन मैरिज मैनुअल, और इसे हम एक एनिवर्सरी गिफ्ट भी दे सकते हैं टू दी कपल्स. और क्योंकि इसमें मैरिड ने भी लिखा है, अनमैरिड ने भी लिखा है, देन फेल्ड मैरिजेस भी हैं इसमें. सो दिस इज टोटल क्रिस्प आई कैन से. जो मतलब आगे की जनरेशन है ना, उन लोगों के लिए जो मतलब जो सोच रहे हैं ना वाई मैरिजेस और क्या एज होना चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा आपको इसमें. एवरी आंसर टू योर क्वेश्चन. सो देखिए एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं. यू कैन बी डॉक्टर्स, सीए, कोचेस, लॉयर्स, एचआर, होम मेकर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, साइकोलॉजिस्ट, हीलर्स, ग्राफोलॉजिस्ट, कोई भी जुड़ सकता है. यू कैन बी एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर विद अंकाक्षर मेराकल्स. और आप लोग हमें गूगल भी कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल भी हमारा अंकाक्षर मेराकल्स के नेम से है, और इंस्टाग्राम आईडी माय हस्बैंड्स आईडी इज अभिषेक चित्रांश, एंड माइन इज truth_of_life82. सो कोई भी क्वेरीज के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और यही नहीं, आपको टोटल सपोर्ट गाइडेंस भी दिया जाएगा ऑन द जूम मीटिंग्स, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे फॉर द आर्टिकल राइटिंग. सो यू आर गोइंग टू गेट अ टोटल सपोर्ट इन दिस. केवल आप समझ सकते हैं कि 2 पेज का आर्टिकल लिखने से यू आर ट्रांसफॉर्मिंग समवंस लाइफ. क्योंकि आपको पता नहीं है, मतलब मैं रहूं या ना रहूं, किताबें तो जरूर रहेंगी. यानी कि वही आप रहे या ना रहे, बट किताबें हमेशा रहेंगी. आज कोई जनरेशन पढ़ेगी, उसकी अगली जनरेशन पढ़ेगी. सो विद दिस यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन. सो लेट्स नॉट टेक मच टाइम एंड स्टार्ट करते हैं मैम. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. यू हैव बीन इनटू द ऑकल्ट फील्ड सिंस 6 years. So what would you like to say on occult practices? Do they lead to personal transformation or spiritual growth? Can you share it with some of example from your clients that you came across, so that people should understand that there is something called world of occultism too? Over to you, ma'am. Thank you so much for inviting me on this platform, and thank you for making me part of this journey. Our Of pleasure. course, बहुत ही डेप्थ में हम नहीं जाते, बट जब आप एक हीलिंग फील्ड में आते हो या ऑकल्ट में आते हो, आप रियलाइज करते हो व्हाट यू आर. आप हो क्या, आप किस लिए यहाँ पर आए हो. इफ यू आर गिविंग गाइडेंस, जैसे कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो इट इज नॉट आई एम चेंजिंग देयर लाइफ, दे आर चेंजिंग देयर लाइफ. हम एक उनके माध्यम में, वी आर जस्ट मीडियम, कि हमने उनको एक गाइडेंस दी एंड दे हैव चेंज देयर लाइफ. और वो इतने खुश हो जाते हैं उस गाइडेंस से कि ये तो मेरे हाथ में ही था, इट वॉज इन माई हैंड, बस मैं यहाँ पर वहां पर भटक रहे थे, बट जस्ट दे नीड अ गाइडेंस. और टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुंडली हो, जो भी हो, इस ऑकल्ट में इतना पावर है, आई थिंक, कि इंसान अपना और दूसरे दोनों का ही लाइफ चेंज कर सकता है. मेरे पास ऐसे कितने केसेस आए, जैसे कि हमने जो बुक लिखा है माय मैरिज दिस वर्सेस कर्स, इतने लोग परेशान होते हैं अपने मैरिज से या फिर अपने खुद के ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से. मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिनको खुद को ही नहीं पता कि वो अपना फाइनेंस खुद ठीक कर सकते, अपने रिलेशनशिप खुद ठीक कर सकते हैं, या ज्यादा टॉक्सिक है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. जिन्होंने भी मुझसे गाइडेंस लिया, उन्होंने और लोगों को रिफर किया. तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. जो भी ऑकल्ट में आना चाहता है, पहले तो टू बी ऑनेस्ट विथ योर क्लाइंट. आप उनको जब भी कोई गाइडेंस देते हो तो बी वेरी ऑनेस्ट. उनका जो प्रॉब्लम है उनको रूट कॉज पे काम कराओ, उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालो. इट इज नॉट लाइक अ ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ऐसा कुछ नहीं होता. आप जो करोगे, आप जो उनको दोगे, वही वो ऑब्जर्व करके उनमें से बाहर निकलेगी. सो ऑकल्ट में मेरा बहुत ही मिरेकल जैसा एक जर्नी रहा है. जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इसका इतना पावर नहीं पता था. आई जस्ट स्टार्टेड टैरो रीडिंग, और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे जब लोगों के प्रेडिक्शन देने लगी,
प्रिडिक्शन तो मैं दे देती थी, बट जब उनका फीडबैक आता था तो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। लाइक जब हम कोई हमारे प्रिडिक्शन करते तो हम बहुत खुश हो जाते कि मेरे लाइफ में ऐसा होने वाला है, ये हो चुका है, मैं इस टाइप की पर्सन हूँ। तो जब मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया और उनकी लाइफ में चेंज हुआ, तो दे वॉज वेरी हैप्पी और मुझे फीडबैक दिया, तो मुझे इतना इंकरेज मिला कि मैं और भी मोडेलिटीज सीखने लगी कि मैं अपने क्लाइंट्स को और क्या दे सकती हूँ। कोई भी दैट्स हीलर, कोई, यस, कोई भी हीलर हो, कोई भी ऑकल्ट में हो, तो वो यही चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, ताकि उनमें जो चेंजेस है या फिर वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उन पे खरे उतरे। और मेरा ज्यादातर यही होता है कि अगर किसी ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है, रीडिंग करवाया है, तो मैं ये सोचती कि मैं उनका कितना अच्छा से अच्छा करूं, अगर बुरा होता है तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। वी कांट चेंज बट वी कैन अवॉइड, वी कैन मिनिमाइज। तो ऑकर्ड इज द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब मुझे इसका कुछ भी नहीं पता था। जस्ट मैंने किसी को देखकर बहुत इंस्पायर हुई और उन्होंने मेरी रीडिंग की थी, और जस्ट इन 1 ईयर मेरे में इतना चेंजेस आया कि मैंने सोचा कि कार्ड्स को देख के इन्होंने मेरी कैसे प्रिडिक्शन कर दी, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो इट वॉज और वेरी, कार्ड्स जब निकालो तो वो इतने रेजोनेट भी करते हैं, मैंने भी एक दो बहुत बार देखा था। रिजोनेट करते हैं और एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आती है। और इट्स अ, बोलते हैं ना, इट्स अ गाइडेंस टूल। आपको एक गाइडेंस मिलती है, बहुत बेस्ट गाइडेंस, और एकदम एक्यूरेट मिलती है, जो आपके साथ होने वाला है इन फ्यूचर आप उसको देख सकते हैं। तो यू कैन बी वेरी अवेयर कि उसको पूरा अगर डिनाई नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप उससे आप बच सकते हो। ये आप 100% श्योर कर सकते हो कि अगर कोई चीज आपको आगे से ही पता चल रही है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, right? कि उस रास्ते पर नहीं जाना है या उस चीज में नहीं पड़ना है। वेरी गुड। क्योंकि जब मैंने देखा कि इनको, मैंने एक दो लोगों को ऐसे सजेस्ट किया और वो उनके कुछ कभी नेगेटिव कार्ड आते हैं तो वो बहुत, उनको ऐसे लगता था कि ऐसे तो कुछ है ही नहीं मेरे लाइफ में जो ऐसे हो। बट सडनली एक वीक में, 15 डेज में जब हुआ, तो उनको लगा कि शी वॉज करेक्ट और मुझे इसको पहले से ही हैंडल करना। बट उन्होंने हैंडल कर लिया था कि जो सिचुएशन आने वाली बहुत बुरी, उन्होंने हैंडल कर लिया क्योंकि उनको क्लिक हुआ कि ये चीज बताया गया था मुझे, और उन्होंने हैंडल किया। एंड देन शी रियलाइज और मुझे मैसेज किया कि मैम ऐसे से हुआ कर। सो आई ट्रस्ट टैरो वेरी मच। मुझे तो बहुत ही ट्रस्ट है, इसीलिए मेरे क्लाइंट भी बहुत खुश होते हैं मुझसे। और एक क्लाइंट ही मुझे दूसरे क्लाइंट को रिफर करता है, रेफरेंस से ही मुझे ज्यादा क्लाइंट्स मिलते दैट्स ग्रेट मैम। और आपका न्यूमरोलॉजिकली अभिषेक सर के साथ भी डिस्कशन हुआ था, तो वो कैसा हैं। एक्सपीरियंस रहा मैम? बहुत अमेजिंग। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जिस घर में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता है कि उस बेड के नीचे क्या है, सोफा कम बेड के अंदर क्या है। एंड आई वाज जस्ट सर से बात कर रही थी, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरा रात को 12 बजे सर ने फोन उठाया। कि मैंने अपने लाइफ में दो ही लोगों को देखा है कि मैंने रात को, आधी रात में कॉल किया या मैसेज किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एक मेरे और सर है, वो गुरु, और एक सर, उनको मैंने मैसेज किया, ही सेड के कॉल मी। 12 o'clock रात को उन्होंने मुझे बोला कि कॉल करो। और जब मैंने उनको बताया कि मुझे कल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे तुरंत बताया कि आपके बेड के अंदर ये है, इसको रिमूव करो, ये करो। मैं शॉक, के मुझे लगा ही नहीं था वो है करके। जैसे मैंने खोला और देखा तो सचमुच इनको कैसे पता, ये वहां पर बैठी और मैं यहाँ पर हूँ। तो ये मिरेकल होता है ऑकल्ट में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में। तब मुझे इतना नहीं पता था न्यूमरोलॉजी का, तो मैंने ऑलरेडी किया था, पर जैसे सर ने बोला तो मैंने और उस पर वर्क करना स्टार्ट किया कि ऐसे भी हो सकता है। वास्तु भी रिलेट करता है न्यूमरोलॉजी से। दैट आई रियलाइज कि जब हम ग्रिड बनाते तो उसमें वास्तु का भी मैक्सिमम चीजों का पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल, सर ने उस दिन मुझे बताया, मैंने रिमूव किया, उससे भी मुझे बहुत रिलीफ मिला। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। डू यू थिंक दैट वुमेन शुड फाइट फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और दे शुड कीप क्वाइट इन केसेस वेयर दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग इट एंड लिविंग अ लाइफ विद द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड? मैम मैं तो रिस्ट्रिक्शन के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। बिकॉज जब लड़कियां घर पर होती है शादी से पहले, तो पेरेंट्स उसको रिस्ट्रिक्शन में ही रखते, राइट? कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, यू आर अ गर्ल, यू आर अ लेडी। नो, हम भी उन्हीं के बराबर है, और फाइनेंशियली तो 100%। बिकॉज मैंने देखा है जो इंसान फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसको किसी की जरूरत नहीं है। शी नीड्स नो बडी।
वो अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट कर सकती है, शी कैन क्रिएट हर ओन वर्ल्ड। और मैं बिल्कुल नहीं, आज मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, कोई बोलता है मेरा एक्स बैक, मैं हस्बैंड बैक, नो बैक, आप फ्रंट में जाओ, यू गो अहेड, यू अर्न योर मनी, यू क्रिएट योर लाइफ। आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट। क्योंकि आज फाइनेंस, आज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक छोटी चीज के लिए, अगर आपके पास बच्चा है, फिर तो आप सोचो कि अगर आप एक बुरे मैरिज में हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैरिज में हो, तो आप तो फिर गए, आपको आपको कुछ नहीं हो सकता है, इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप मतलब उस मैरिज को कैसे भी कैसे निभाने का ही ट्राई करोगे, यू विल नॉट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। क्योंकि आपको पता है कि मैं किसके ऊपर डिपेंड रहूं, पेरेंट्स के पास जा नहीं सकते। तो आपका एजुकेटेड होना, आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ, एक्स चला गया है तो वेरी गुड, आप छोड़ दो उसको, आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। आपको जिससे शादी करना है, आप उससे शादी कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांगली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि आजकल फाइनेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, मनी के अलावा कुछ नहीं है। कहीं पर भी जाओगे, आप रेंट पे रहो, खुद का घर लो, पेरेंट्स के साथ भी रहोगे, तो जो आपने अपना जो लाइफस्टाइल बनाया है, अब तो आप बड़े हो गए, तो आपके पेरेंट्स तो उसको नहीं पूरा कर सकते हैं ना। और वो भी है कि पेरेंट्स के साथ भी रहोगे तो सोसाइटी इज गोइंग टू क्वेश्चन ऑन दैट, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ रहते हो ना मैम, आप देखते हो 3 महीने 6 महीने के बाद है ना, आपके नेबर्स पूछने लगेगी आपकी बेटी अभी तक गई नहीं। जबकि आप रेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सब कुछ आपके पेरेंट्स भर रहे, बट क्वेश्चन वो उठाते कि आपकी बेटी गई नहीं, आपका बेटा यहाँ पर है जिसकी शादी नहीं हुई, मतलब लॉट्स ऑफ क्वेश्चन भी आज, जबकि उनका कुछ भी रिलेशन नहीं है उनके साथ। मेरा मतलब है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली रेडी हो, तो आप उनको भी चार बात बता सकते हो कि भाई मैं अपना घर चला रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को जब रह रही हूँ तो मैं भी उनको पे कर रही हूँ, तो हु आर यू, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी के लाइफ में। तो मैं वुमेन्स, लेडीज, गर्ल्स सबको बोलती हूँ कि 12th के बाद हो सकता है तो आप अपनी जर्नी फाइनेंशियली रेडी होने में लगा दो। आपका थोड़ा सा अमाउंट कहीं पे लगा दो, जहां पर भले आपको 10-15 साल बाद आपको घर मिले, 20 साल बाद मिले। क्योंकि बोलते हैं ना, लाइफ इज नेवर प्रिडिक्टेड। आपके लाइफ में कुछ होने वाला है, क्या होने वाला आप नहीं बता सकते। नाउ टुडे यू आर वेरी हैप्पी, और आपने कुछ खुशी में आके कोई डिसीजन ले लिया, इन फ्यूचर यू डोंट नो, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एग्जैक्टली। फाइनेंस, फाइनेंस मस्ट, फर्स्ट फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद एकदम लेविश स्टाइल में रह सकते हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। सो आइए मैम से जानते हैं कि एज शी इज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, तो कुछ स्विच वर्ड्स बताइए मैम फॉर द बेटर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स को। जरूर जरूर, पहले तो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही प्यार से रखिए, कि ऐसी नौबत ही ना आए। एक दूसरे पे ट्रस्ट कीजिए, डू नॉट लेट एनी थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन टू बी इन्वॉल्व इन योर पर्सनल लाइफ। ये एक मेल फीमेल, मैं किसी को जेंडर से नहीं ये करती हूँ। अगर ये हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी, यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। आप एक दूसरे को समझो, आपने एक साथ में इतना साल बिताया है, तो आपको पता है कि आपकी वाइफ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, हस्बैंड क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और मैं ये भी एक मैसेज दूंगी इन लॉज को, प्लीज अपने फैमिली को, अपने बेटे को, अपनी बहू को खुश रहने दो। अगर आप अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हो, उनको बहुत अच्छी लाइफ देखना चाहते हो अपने दामाद जी के साथ, तो व्हाई नॉट योर सन, व्हाई नॉट योर डॉटर इन लव, डोंट डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, मेक देम हैप्पी। आपके बाद वो किसके साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, राइट। तो आप, मेरा तो सबसे पहले ये मैसेज है, रिलेशनशिप दो लोगों का एक स्ट्रक्चर है जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर प्लांट, अगर आपने स्ट्रांगली सीड्स डाला है, तो वो ट्री एकदम स्ट्रांग होता है, तभी वो आपकी रिलेशनशिप राइट होती है। अगर आपने किसी को इन्वॉल्व किया और आप ट्रस्ट नहीं करते हो अपने पार्टनर को, तो ये रिलेशनशिप तो वैसे भी कुछ काम का नहीं। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते हो, क्योंकि अगर वो आपके घर के लिए इतना कुछ कर रही है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले अपने रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड करो, एकदम स्ट्रांग रखो, कि आपने किसी का सुना तो आप जाकर उससे कुछ पूछोगे भी।
इफ यू तो ट्रस्ट हर इसमें तो ऑल्सो। इसमें हम लोग स्विच वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम, और इसके लिए टुगेदर डिवाइन लव। और आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स पहन सकते हो आप। एक मैंड्रिन डक आती है, वो आप रख सकते हो बेडरूम में। या फिर आप राधे कृष्ण जी का फोटो आप बेड साइड के ऊपर, जिधर हम हेड रखते हैं उसके ऊपर हम लगा सकते हैं, कि आपके रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो उस चीज के लिए। अगर ओके। हम हेल्थ में देखा जाए, किसी आजकल हेल्थ का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी, शुगर और हार्ट अटैक, बहुत सारी डिजीज भी नई नई, पता नहीं क्या क्या, थायराइड, वो सब निकला है। हार्ट हम्म। अटैक का तो चलो हम मान सकते हैं, बट जो छोटी मोटी डिजीज है उसके लिए भी हम सिचुएट्स रख सकते हैं। या फिर मैं आपको एक दो चीजें ऐसे रेमेडीज बताती हूँ। अगर जैसे हेल्थ की बहुत ज्यादा इश्यू है, तो आप फिटकिरी को काले कपड़े में विथ रोजमेरी आप टाई करके अपने पिलो के नीचे रख सकते हो या कैरी कर सकते हो। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक जो है स्विच वर्ड से फुल इम्यूनिटी बी इंफिनिटी, वो भी आप चैंट कर सकते हो, या फिर ऊपर नाम लिखकर फिर आप अपना नाम लिख दो, ब्लू पेन से सर्कल बनाइए, और सर्कल के अंदर अपना नाम लिख के ये वर्ड्स आप लिख दीजिए, जो हम बाद में कैप्शन में डाल देंगे। तो ये आप करने से आपके पिलो के नीचे रखिए, या फिर वो सर्कल के ऊपर एक कांच का ग्लास रखिए और उसमें पानी भर के रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा, वो पानी आप पीजिए। या फिर आप अश्विना का भी चैंटिंग कर सकते हो। ये भी चैंटिंग करने से हेल्थ में बहुत ही रिलीफ मिलता है। और एक स्विच कोड भी दे सकती हूँ आपको, 1814321। ये आप ब्लू पेन से आपके लेफ्ट हैंड पर लिखना है आपको, कंटिन्यूसली 21 डेज लिखना है, या फिर आप इसको चैंट भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो अगर आप मच। फाइनेंस की अगर आप बात करते हो, तो आप लेफ्ट हैंड में 520808 इंफिनिटी का सिंबल्स बनाइए, है ना, उस पे। और 24 नंबर अगर आपको अपने वीनस माउंट पर यहाँ पर करना है तो वो कर सकते हो आप। ये वाला नेक्स्ट, 24 वाला तो मैंने भी किया है पर्सनली एंड इट वर्क्स। यस, और 520 भी आप देखिए, 520 कीजिए। और जस्ट ये एनर्जी ऐसे काम करती है मैम, कि जैसे आपने 520 लिखा, बट आपका इनकम सोर्स कहाँ से आ रहा है, आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि मैंने ये लिखा तो है, बट इनकम सोर्स मेरे चारों तरफ से बढ़ रहे, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन आई एम गेटिंग मनी, अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। सडनली आता है। एक टाइम एक जैसे मुझे एक टाइम पे ऐसे चाहिए था बट मेरे मनी कहीं से अरेंज नहीं हो रही थी, बट सडनली इट गॉट अरेंज, कैसे हुआ मुझे खुद ही नहीं पता लगा, जैसे ही मैंने हाँ, 24 लिखा था। राइट। और दूसरा एक जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाती हूँ, अगर आपको कितना भी बड़ा 1 लाख रुपए भी पैसे चाहिए, अगर आपको, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे मोबाइल खरीदना था और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, बट मेरी अर्निंग चालू थी, जो कि मतलब मंथली बहुत कम आती थी, बट मुझे लग रहा था कि मेरे को 50,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए। एंड दैट टाइम आई वाज लर्निंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कोर्स पूरा किया, मैंने स्टार्ट किया 369 वाली टेक्निक्स। विद इन 21 डेज मुझे एक बड़ा ही ऑर्डर मिला, और फिर उसमें मुझे ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज मिले। और तब से मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, तो मैंने कई लोगों को सिखाया भी, और ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मॉर्निंग में 3 टाइम, आफ्टरनून में 6 टाइम, और नाइट में 9 टाइम्स लिखकर आप भूल जाओ। बट आपके पास जो सोर्सेस है कि यहाँ से आने वाला है, इस जगह से आने वाला है, आप जस्ट वो इमेजिन करो, और आपको कहीं ना कहीं से वो पैसे जरूर मिलेंगे, भले वो लाखों रुपए हो, आपको मिल जाएंगे। मैनिफेस्ट। हाँ, मैनिफेस्ट करना है आपको, मैनिफेस्ट तो हर चीज के लिए करो। आपका जो रिलेशनशिप है, आप जस्ट उसके बारे में ही पॉजिटिव सोचो, रोमांटिक सोचो। आप ऐसे सोचो कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत खुश है, शी शेयर्स एवरीथिंग विथ मी। आपका रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाता है। आपके एनर्जी पे आप बोलोगे, आज मैं उनको बताती हूँ आने के बाद कि आज इन्होंने फोन लॉक करके क्यों रखा, तो फिर वो लड़ाई होने वाली, कुछ और नहीं होगा उसका। अगर आप ये सोचोगे कि बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हमने टाइम अपना स्पेंड किया, तो वैसे ही आपका होगा। मैं एनर्जीज पे बहुत बिलीव करती हूँ। ये डेफिनेटली हमारे ऑडियंस और लिसनर्स के लिए हाँ, बहुत ही वैल्यूएबल क्योंकि आप होंगी। जितना, यस, आप जितना पॉजिटिव आप एनर्जी सेंड करते हो ना, उतना ही आप डबल पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो, रिसीव करते हो। आप मनी हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग। आप हेल्थ के लिए तो ये सोचो कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो वो आपको कोई डिजीज होगा ही नहीं लाइफ में। आपकी जो डिजीज रहेगी वो बाद में आपको 3-6 महीने के बाद पता चलेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं, रिपोर्ट्स में सब कुछ नील आएगा, कुछ नहीं था आपके। तो बिल्कुल बिल्कुल एवरीथिंग मैम, इज थैंक यू डिपेंड सो इन मच। नॉलेज।
फॉर यस। शेयरिंग इट। और आपका नाम भी मैं देख रही हूँ कि इज इट न्यूमरोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म्ड और सो, बिकॉज यस आई थिंक इट इज SHIKH, बट आई ऑन द स्क्रीन आई कैन सी इट्स शिखा मेहर। यस मैम, एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत जब मैं एज ए इंटर कल्ट के मुझे ऐसा लगता कि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत बहुत मेरा टेम्पर बहुत बड़ा हाई था। तो समवन सेड कि यू स्टार्ट राइटिंग SHKH। तो ऐसे तो मैंने देखा कि बहुत बैलेंस हो गया, बहुत बैलेंस हो गया। जो चीजें मुझे एक बार में खटक जाती थी, तो वो चीजें क्या होती थी, मैं थोड़ा सोचने लगती थी व्हाई एम डूइंग दिस, मेरा रिएक्शन इतना स्ट्रांग एक्शन में क्यों चेंज हो रहा है। बट वो धीरे धीरे से वो बहुत काम हो गए थे मैम, बहुत मतलब मुझे बहुत डिफरेंस आया। तो समटाइम मैं इसी को शिखा मेहर को ही डालती हूँ। हाँ ये है कि मेरे आईडी वगैरह पे SHIKH ही है। तो मुझे बताया गया था कि आपको जरूरत नहीं है आपकी आईडी वगैरह में कुछ चेंजेस करने की, आप सोशल मीडिया पे ही चेंज करो एंड इट वर्क्स। दैट्स रियली ग्रेट मैम। तो चलिए जानते हैं मैम से कि 7 ली ऑफ लाइफ आर्टिकल से क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम आप ऑडियंस को। मैं 7 ऑफ लीव्स के बारे में ये बोलूंगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, लर्निंग से है, जो आप लर्न करते हो ना मैम, एज यू स्टार्ट लर्निंग ना यू स्टार्ट अर्निंग। ऐसे कि जैसे आप जो भी चीज लर्न करते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं फाइनेंस के लिए लर्न कर रही हूँ या मेरे जॉब के लिए, तो स्टार्ट अर्निंग। और कुछ चीजें ऐसी होती है, हम इस बेसिक चीजों के लिए भी लर्निंग करते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस लाना है। इफ यू आर मेकिंग दैट चेंजेस, दैट मीन्स यू आर लर्निंग द राइट थिंग। और अर्निंग के लिए भी मेरा वही है कि आप जो अर्न कर रहे हो उसको सेव कर रहे हो, बहुत ही इंजॉय कर रहे हो, तो अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन बी इंडिपेंडेंट इफ यू अर्न। बट ओवर हियर अर्निंग इज लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, फ्रेंड्स, फैमिली। It is money also, यस यस but what we have यस covered in this book is it's all this, because ये सारी चीजें ऐसी है कि बनाने में सालों साल लग जाते हैं, but it just take few seconds to break it। एक बार राइट किसी से राइट भरोसा टूट गया तो टूट गया, देन राइट। वो जो है ना मन में वो एक शक रह सा जाता है। सो यहाँ पे जो अर्निंग है, what we have covered in this book, it is all these earnings, so love, Yes, trust, yes. respect। So respect, when you are giving respect to someone, you 100% receive respect and nobody will disrespect you. Because अगर आप you are a respectful person ना, आपको कोई कुछ बोल देना, you will not answer them. मैंने ये सीखा है, when you don't answer them, you save your respect. एंड आई थिंक दिस इज द राइट वेपन, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ लोग आपको कुछ ऐसी बातें बोल देंगे कि यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन, बट आई स्टार्ट कीपिंग क्वाइट, ये आपको कुछ नहीं बोल। एंड यू सेव योर रिस्पेक्ट एंड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एवरी वन, क्योंकि आप फिर एक्शन से ही फिर रिएक्शन होता है, so it's better to keep quiet। यस। बिकॉज मैं कई बार ट्रैवल भी करती हूँ, तो कुछ ऐसे लोगों से हम उलझ जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमको थोड़ा सा काम लेना चाहिए। वो थोड़ा बोलेंगे और बोलेंगे, तो पब्लिक के नजर में क्या होता है, व्यू में कि अरे वो तो कुछ नहीं बोल रही, ये बोले जा रही है ना, सो शी विल स्टॉप। वो कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं बोल रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही, तो मैं बुरी बन रही हूँ। तो आप थोड़ा टाइम दोगे तो रियलाइज करेंगे कि नहीं, शी इज नॉट द राइट पर्सन टू डिसरिस्पेक्ट हर और फेम, क्योंकि वो हमारे लेवल के नहीं है। क्योंकि आप किसी के साथ जब एक्शन लेते हो, तो उसके लेवल पर जाना पड़ता है ना। आई गेस कि आप वैसे नहीं हो, तो आप इतना ज्यादा नहीं बोलोगे। हाँ, आप अपने राइट्स के लिए बोल सकते हो, बट दैट पोलाइटली विथ रिस्पेक्ट। So, क्या एंड feeling like, ma'am, when you got both your anthology books in hand and those personalized goodies, certificate, आप ऑडियंस के साथ शेयर करिए, दिखाइए बुक सर्टिफिकेट। ये है मेरा बुक्स जो मैंने आई थिंक जब ये स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट वीक में ही मुझे मिल गया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने इंस्टा पर भी इसका फोटो शेयर किया था। यस, इट्स ब्यूटिफुल। यस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस ईच इज एंड द एवरी वन ऑफ सर्टिफिकेट। यू। आई एम क्योंकि जिन्होंने मुझे आपका प्लेटफॉर्म दिखाया, उनको भी मैं बहुत थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हर ऑल्सो, कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिखाया और इतना रिस्पेक्ट मुझे मिला। बिकॉज राइटिंग अ बुक, आपको कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आगे से नहीं आता। आई एम टेलिंग एवरीवन कि आपको आगे से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। अगर ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो दैट यू आर वेरी लकी एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्योंकि अगर ये आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, लोग जो भी बोले अवॉइड, आप आगे बढ़िए, आप लिखिए, आपकी स्टोरी लिखिए। आप जब तक आप
के अंदर का चीज नहीं ला के रखोगे। और अब मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी जब आपने दूसरे बुक के बारे में डाला था ग्रुप में, तो मैंने यही सोचा कि मैं रहूं या ना रहूं, बट इसमें मेरा एक नाम रहेगा एज ए शिखा मेहर, एंड शी हैज रिटन हर स्टोरी। राइट। तो मैंने ये 4 दिन पहले सोचा है। एंड यू सेड, जब इन द बिगनिंग आपने ये बात कहा कि आप रहे या ना रहे, इसके अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं 10 साल 20 साल बाद इफ आई एम नॉट देयर, तो ये बुक्स निकाल के मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, कोई ना कोई ये स्टोरी पढ़ते हुए मेरे फोटो देखकर मुझे मिस करेगा, याद तो करेगा। एंड या ऑल फिर दीज जो, राइटर्स, आप लोगों ने एक अपनी लेगेसी क्रिएट कर दी है कि कोई ना कोई यस, तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा इसे फ्यूचर में, 100%, जनरेशंस, यस। जनरेशंस टू जनरेशंस, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म a nation, जो Of course, वुमेन they करती है। will get the message. They will get the right message to choose your right partner, to choose your right family. राइट। So this book is very helpful. जिसकी शादी नहीं हुई उनको तो ये जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको एक आइडिया मिलेगा, जैसे हमको नहीं मिला तो उनको बोनस में ये आइडिया मिलेगा कि उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। यस, थैंक तो यू सो मच। इज द राइट बुक्स फॉर देम। तो मैंने तो कई लोगों को बोला है, रिकमेंड किया कि आप किसी को भी शादी में देना तो ये बुक गिफ्ट कर दो, या पहले ही दे दो। शादी के बाद तो काम की है, ये पहले भी बहुत ज्यादा काम की है। तो वो सोच समझ कर डिसीजन भी लेगी, उतना वो अंडरस्टैंड करेगी क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैक यू फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट, एंड आपकी वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइसेस, स्विच वर्ड्स, एवरीथिंग वाज टोटली मैजिकल। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी ही मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। दिस वाज रेणु मंगतानी विद शिखा मेहर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, टेक केयर मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू।